Continue with the cloud service delivery models that we were talking about in our earlier lecture in form of cloud reference architecture, cloud reference model. Because we've in the earlier lecture we have mentioned this term architecture. It means that all the layers layered architecture have been discussed, in which individual layer corresponds to a specific service model. Fine, so I have given a brief introduction of all the service models. Now, in this video tutorial I'll be talking about each of the service model in detail. And in the reference architecture, individual layers have been arranged in form of layers or stack. That's why it is architecture. So the bottom layer was ars, then pars, and sars. Now here let's discuss that why such kind of architecture have been formed. Once if this is known to you, then you can relate it. But I have given a very brief idea about everything like sars, pars, in the lecture. Let us now discuss everything one by one. So I'll start with infrastructure as a service. Fine. So what is infrastructure as a service? It provides the capability to the consumer to hire the infrastructure components. Infrastructure component means servers, storage, networks, all the storage, like storage devices. Different type of storage devices are there. Server means a computational machine which performs processing and all that. So all the hardwares like CPU or RAM, ROM, complete internal hard disk is also associated with that, NIC. So server is having a lots of other components as well. It's fine. And storage, it could be there are different technologies used for storage. Like you might have heard this term storage area network. So such kind of things, elastic block storage. So cloud uses different types of technologies to store the data, because if you talk about the file system which we are using in a laptop or desktop, this is what like NTFS or FAT32, all these there are some limitation with them because they can't store a lots of data. So in cloud computing, very high-end storage technologies are being used so that the millions of pieces of data can be stored. Fine. Network, so it's also part of hardware only. So all these physical devices, physical machines forms infrastructure. So this infrastructure, if using this our services, the infrastructure can borrowed or can be hired from the cloud service provider. And it enables the consumers to deploy and run software. So this is what I was talking in the earlier lecture, that once you have a complete control on the part of the infrastructure that you have taken from the cloud service provider, then it's up to you that what kind of software you want to run, what kind of OS or application you want to deploy. So this consumer can do whatever they want to do in their infrastructure, in their machines. So once we are having this, like if you are having a laptop, then it's all up to you what kind of applications you want to install, what kind of OSs you want to install, what kind of databases. तो यहाँ पे क्या रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हाई एंड की रहती है, यूज़र के पास ज़्यादा कंट्रोल मिल चुका है उसे. पेज फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट यूसेज. अब यहाँ पे जो बिलिंग जनरेट होगा वो किसके हिसाब से होगा, बेस्ड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स यू आर यूजिंग. लेट अस से 4 सर्वर है तो 4 सर्वर के कॉस्ट के अकॉर्डिंग बिल बनेगा, 2 सर्वर्स तो 2 सर्वर के, 4 GB रैम मशीन लिए तो 4 GB मशीन के. तो जो भी आपका कंप्यूट स्टोरेज नेटवर्क, ये याद रखना हमेशा, ये जो दीज 3 थिंग्स आर द की कंपोनेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कंप्यूट आ जाता है, मतलब सर्वर पार्ट्स आ रहा है, स्टोरेज आ जाता है और नेटवर्क आ जाता है. बिना स्टोरेज के डेटा कहाँ से होगा, बिना नेटवर्क के कंप्यूट सर्वर्स कैसे कम्युनिकेट करेंगे. तो कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्क, ये 3 की एलिमेंट्स और की कंपोनेंट्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के. ठीक है. एंड ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, एक बार किसी ने बाय कर लिया, उसके बाद वो कोई भी डेटा बेसिस रखे, एप्लीकेशन रखे, वो उसकी मर्जी. बट दीज ऑल थिंग्स आर पॉसिबल ओनली इफ वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस. फाइन. इसके एग्जांपल हम देखते हैं. लेट दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल. तो ये अमेजन का एक सर्विस है, अमेजन इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट EC2. So EC2 basically it's a infrastructure as service model. I have given some video lectures on EC2 AWS as well to you, so that you can take practical examples. So just to give a practical examples of cloud and all, how a virtual machine is launched, how it is accessed through the PuTTY. So I assume that if you are have given me mail IDs and if the account creation has been started, then please follow, take some time, 1 hour or 2 hour, and you just follow all the tutorials and do some hands-on, like launching an instance and remotely accessing that instance using SSH, and then creating and launching, configuring security rules. So whatever I have shown in those tutorials, just follow. You can use them. And if you follow those tutorials, and these tutorials were talking about infrastructure as a service only, because EC2 elastic cloud compute is provides us the virtual machines, servers and all, and these are part of infrastructure. So that is why EC2 is an infrastructure as a service.
So it allows the consumers to hire the virtual components on which they run their own applications. Fine. AMC Atmos online provider provides this AMC this Atmos. It also provides storage as a service. So in fact Amazon का भी S3 एक सर्विस है, सिंपल स्टोरेज सर्विस. Amazon S3 आपने सुना होगा, तो वो भी एक स्टोरेज की सर्विस है. ऐसे ही अलग काफ़ी सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, जैसे डिजिटल ओशन, रैक स्पेस हो गया आपका, सिस्को, मेटअप और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है. गूगल कंप्यूट इंजन, गूगल का जो गूगल कंप्यूट इंजन है GCE is basically Google's R services, whereas Google application engine जो है वो that was PaaS service. बट गूगल का जो GCE है, गूगल कंप्यूट इंजन, जिसके थ्रू सर्वर्स वगैरह प्रोवाइड करता है, वर्चुअल मशीन देता है, ये इसको हम बोलते हैं GCE. तो बहुत सारे काफ़ी सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, हमको क्लाउड सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं. और दीज आर सम ऑफ द नेम्स ऑफ द सर्विसेज विच बेसिकली डील्स विद प्रोवाइडिंग आर सर्विसेज. फाइन. What are services? Through which the infrastructure is hired to the service provider. तो कौन यहाँ पे इंटरेस्ट कौन लेगा, यहाँ पे यूजर्स कौन से होंगे आपके, बेसिकली वो सारे यूजर्स लाइक दोज हु डोंट वांट टू परचेज द एंटायर और सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क डिवाइसेस, स्विचेस, क्योंकि उनको खरीदने में भी कॉस्ट आएगा, मेंटेन करने की भी कॉस्ट आएगी, उसके लिए डेटा सेंटर चाहिए होगा, या तो वो खरीदो लैंड, डेटा सेंटर बनाओ, या फिर आप रेंट पे लो, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, कूलिंग बिल, यू हैव टू टेक केयर एवरीथिंग देन, है ना. अगर आप वो हेडेक नहीं लेना चाहते हो, जस्ट टेक दी आर सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम दी क्लाउड ऑन सब्सक्रिप्शन बेसिस. तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जो कॉस्ट आपका आ रहा था फॉर परचेजिंग एंड फॉर ऑल द मेंटेनिंग और ऑल दोज थिंग्स, वो काफ़ी हद तक आपका काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि आपको सब्सक्रिप्शन बेसिस पे जितने प्लान के लिए आप यूज़ कर रहे हो, यूसेज बेसिस पे उतने देर के लिए आपको उतना टाइम के जब यूज़ करोगे, बस यूसेज बेसिस पे आपको बिल जनरेट करना है. और माई सर्विस मॉडल बेसिकली प्रोवाइड्स द कंज्यूमर्स or the cloud customers to develop, run and manage applications without the complexity of building and maintaining the infrastructure. तो ये तो आपका बहुत टेक्निकल डेफिनेशन हो गया. इसका नॉन टेक्निकल डेफिनेशन या फिर लेमैन लैंग्वेज में आपको ऑलरेडी क्लाउड रेफरेंस आर्किटेक्चर में बता चुकी थी. दैट पास हम बेसिकली किन लोगों के लिए होता है, जो लोग कोडिंग वगैरह करके सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं, उनको एक रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए. अब इसी को अगर टेक्निकल डिफाइन किया जाए तो नाउ यू कैन रिलेट दिस टेक्निकल डेफिनेशन नाउ, बिकॉज आपको मतलब एज अ नॉर्मल लैंग्वेज, लेमैन लैंग्वेज, यू अंडरस्टैंड प्लेटफॉर्म नाउ एज सर्विस नाउ. अब इसको टेक्निकली कैसे डिफाइन करते हैं, विच इज़ यूज टू डेवलप, रन एंड मैनेज. क्योंकि डेवलप करने के लिए तो हमें क्या चाहिए होगा, ओपन सोर्स टूल चाहिए होंगे, या फिर पेड टूल्स हो, मतलब प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, और रन टाइम एनवायरनमेंट के जितने भी टूल्स होते हैं, चाहे कंपाइलर हो, IDE हो, डेटा बेसिस ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लैंग्वेज का डिफरेंट कंपाइलर्स होंगे. तो जो भी आपका ये बेसिकली डेटा बेसिस OSS, जो भी प्लेटफॉर्म के लिए, जो भी एनी मिडलवेयर मतलब एनी टूल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग एन एप्लीकेशन, तो वो ये पास सपोर्ट करेगा डेवलपमेंट के टूल्स, तो वही डेवलप कर सकते हैं. डेवलपमेंट के बाद क्या होगा, एग्जीक्यूशन के लिए क्या चाहिए पड़ेगा, कंपाइलर चाहिए पड़ेगा आपको एग्जीक्यूट करने के लिए, और कुछ रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए होगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल जावा का प्रोग्राम रन करना तो JDK पूरा एनवायरनमेंट चाहिए, JVM वर्चुअल मशीन उसमें इंस्टॉल होनी चाहिए मशीन में. तो ये सारा रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड एंड मैनेज द एप्लीकेशंस. मैनेज एप्लीकेशंस मीन्स अनदर सेम थिंग. जैसे कंपाइलर में आप लोग क्या कर रहे हो, काफ़ी सारे प्रोग्राम, एक ही कंपाइलर, ऐसा नहीं कि कंपाइलर सिर्फ एक ही प्रोग्राम को कंपाइल करेगा जावा के. एनी जावा प्रोग्राम कैन बी कंपाइल्ड बाय द कंपाइलर, और ऑल दीज थिंग्स आर मैनेज्ड बाय ऑल दोज. ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल की जाती है. ऑपरेटिंग सिस्टम कैन प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू एग्जीक्यूट मल्टीपल एप्लीकेशंस. तो वो सारा का सारा मैनेजमेंट जो है वो प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है, ठीक है. तो पूरा उनको टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं ना, उनका पैच मैनेजमेंट, और नए वर्जन्स अगर आ रहे हैं डेवलपमेंट टूल से रिलेटेड तो उनको नए वर्जन्स को अपडेट करना. तो ये पूरा का पूरा काम एक प्लेटफॉर्म सर्विस ही डील करेगा क्लाउड का. ये आपका हेडेक नहीं है, उसको कैसे मैनेज करना है, वर्जन्स को अपडेट करना, ये सब कुछ, ठीक है. तो ये एक ऑर्केस्ट्रेटेड कह सकते हो, ऑटोमेटेड एक पूरा सिस्टम है विच इज़ प्रोवाइडिंग यू प्लेटफॉर्म टू द कस्टमर्स टू डेवलप द एप्लीकेशन, रन देम एंड देन मैनेज द एप्लीकेशंस विदाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर. तो पास सर्विस में क्या होगा कि आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है. Directly a PaaS service, you can directly go to the PaaS services like Google Application Engine, and you can directly work in your main project, and you can do all those development part directly straight from the Google Application Engine only. जो भी PaaS सर्विस होगी उसके प्लेटफॉर्म में जाकर के you can directly start doing a project and all. ऐसा नहीं कि पहले आपको एक वर्चुअल मशीन खरीदनी पड़ेगी, सर्वर खरीदने पड़ेंगे, डेटाबेसेस खरीदने पड़ेंगे,
आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदना पड़ेगा, नेटवर्क डिवाइसेस मतलब सब कुछ ऑनलाइन होगा, बट ये इंफ्रास्ट्रक्चर पास में खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिकॉज इन पास सर्विसेज दिस सम ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट होता है ये दिस इज़ डिफ़ॉल्ट प्रोवाइडेड, ये आपको दिखेगा नहीं लेकिन, ठीक है। तो पास सर्विसेज में ऐसा तो नहीं है कि चीज़ें हवा में चलेंगी। फॉर एग्जांपल आप एक लैपटॉप में आप जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है एक प्लेटफॉर्म है, तो क्या प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर आपके पास एक लैपटॉप ही ना हो तो? So it means yes, of course, in order to execute the platform related applications, platform related processes, tools, application frameworks, yes, of course, we require certain physical devices as well, infrastructure as well. ठीक है, तो पास सर्विसेज जो है ऐसा नहीं कि आज को यूज़ नहीं करेंगी, पास सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर को तो यूज़ करेंगी, लेकिन पास सर्विसेज के केस में इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सप्लिसिटली खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और सेकेंड थिंग कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो बैकएंड में जो भी वो सर्वर यूज़ कर रहा है, बैकएंड में वो जो भी आपका नेटवर्क डिवाइस, जो भी बैकएंड में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है, चाहे वो स्टोरेज डिवाइसेज हो, मेन मेमोरी हो, सीपीयू हो, सर्वर हो, एनीथिंग विच इज़ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो यूज़र को नहीं दिखेगा, इट इज़ नॉट विजिबल, इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द यूज़र। तो यूज़र को सिर्फ क्या दिखेगा, एक खाली टर्मिनल का फ्रंट एंड पोर्शन दिखेगा किसका, गूगल एप्लीकेशन इंजन के पोर्टल का। उस पोर्टल पे वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके, जैसे नॉर्मल आप लैपटॉप में काम करते हो, आपने सेलेक्ट किया है, आईडी खोला, आईडी खोल के कोडिंग करना शुरू कर देते हो, फिर आईडी ओपन करने के बाद उसमें सेटिंग्स में जा करके पाथ वाथ सेट करते हो कंपाइलर का, ठीक है, जो भी करना है आपको, आप डेटाबेस अगर डालना चाह रहे हो सेटिंग्स में ही जाते हो, और डेटाबेस का पाथ जैसे अपाचे वेब सर्वर जो भी डालना, आप उस सेटिंग में जाके कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह सब कुछ खुद से ही करते हो। तो जैसे लैपटॉप में आप नॉर्मली काम करते हो वैसे ही आपका काम वहाँ पे भी रहेगा। बट यहाँ पे क्या है कि जब आप विदाउट क्लाउड, ठीक है, क्लाउड को छोड़ दो, अगर आप नॉर्मल वे में जब लैपटॉप में काम कर रहे हो तो आपको लैपटॉप दिख रहा है, आपको लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन भी आप चेक कर सकते हो, लैपटॉप कितने जीबी की रैम है, इसमें कौन सा सीपीयू चल रहा है, क्या है, मतलब कौन सी सीरीज़ है लैपटॉप की, है ना, ये सब कुछ आप देख सकते हो यहाँ पे। बट इफ़ यू आर टेकिंग ओनली पास सर्विस ऑफ द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, तो जो उसके बैकएंड पे ये तो सब दिखेगा कि भाई क्या टूल यूज़ करना है, कौन सी लाइब्रेरी सेलेक्ट करनी है, क्या आईडी खोलना है, वो सब कुछ जो दिखाएगा, फ्रंट एंड व्यू दिखाएगा। बट उसका बैकएंड का जो हिडन डिटेल्स हैं कि बैकएंड में कितने सर्वर्स चल रहे हैं उन प्रोग्राम को चलाने के लिए, कि हाउ मेनी सीपीयूज आर यूटिलाइज, हाउ मेनी रैम इज़ यूटिलाइज, हाउ मच रैम इज़ यूटिलाइज, वो सारा का सारा हिडन है इंफ्रास्ट्रक्चर का, क्या क्या यूज़ हो रहा है। वो डिफ़ॉल्ट जितना ज़रूरत होगी वो ऑटोमेटिकली उतना ले लेगा, बट आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इज रिटन दैट कंज्यूमर हैज़ कंट्रोल ओवर द डिप्लॉयड एप्लीकेशंस एंड पॉसिबल एप्लीकेशन होस्टिंग एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशंस। तो यू कंज्यूमर खाली क्या कर सकता है, जो एप्लीकेशन पे वो काम कर रहा है, कोडिंग वगैरह कर रहा है, उस पर उसका फुल कंट्रोल रहेगा। और येस ऑफ कोर्स उसका थोड़ा बहुत कंट्रोल और किस में रहेगा कि जो कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह सेटिंग वगैरह उसे करनी है, चाहे डेटाबेसेस की करनी हो, चाहे उसे बात सेट करना है कंपाइलर का, जो भी उसे कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड चेंजेस करने हैं विच आर कम्प्लीटली रिलेटेड टू द प्लेटफॉर्म ओनली। सॉफ्टवेयर में जब कोडिंग करते हो, आप लोग सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो जो भी आपको काम करना है वो सारा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, बट बैकएंड की उसकी नहीं रहेगी इंफ्रास्ट्रक्चर की, ठीक है। और आपको बिल जो जनरेट होगा वो भी आपका सिर्फ प्लेटफॉर्म में जो कंपोनेंट होते हैं प्लेटफॉर्म के, उनके हिसाब से जनरेट होगा कि डेटा बेसिस कौन सा, विच डेटा बेस यू हैव यूज्ड, विच ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेमवर्क यू यूजिंग, जावा, .NET, व्हाट है ना, इंटीग्रेशन सिस्टम। तो आप व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट टूल्स आर यूजिंग, what type of languages you are using in your तो completely आप प्लेटफॉर्म में कौन कौन सा टूल यूज़ कर रहे हो, क्या क्या यूज़ कर रहे हो, बेस्ड ऑन द यूसेज ऑफ दीज टूल्स फॉर स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो इसके बेसिस पे आपका बिल जनरेट होगा, ना कि इस बेसिस पे कि कितना सर्वर यूज़ करो, कितनी रैम, कितना सीपीयू यूटिलाइजेशन, इस बेसिस पे बिल जनरेट नहीं होगा। स्पेसिफिकली प्लेटफॉर्म में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं हर प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक आपका जनरेट होगा। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आपका बिलिंग जनरेट होता था वो किसके हिसाब से होता था कि हाउ मच इंफ्रास्ट्रक्चर यू हैव टेकन फ्रॉम द क्लाउड, सर्वर कितने लिए, रैम कितने लिए, यूटिलाइजेशन कितना, आपका रैम कितनी यूज़ कर रहे हो एंड ऑल, ठीक है। यहाँ पे बिल वो ऐसे जनरेट नहीं करेगा, वो डिफ़ॉल्ट उस ऑफकोर्स उसका लगेगा, बट वो जो पूरा का पूरा जो है वो कवर अप कर लेता है आपके प्लेटफॉर्म का जो बिल जनरेट होगा, उस पर जो बिलिंग चार्जेस होंगे वो उसमें वो कवर अप कर लेगा डिफ़ॉल्ट चार्जेस जो उसके बाकी के आ रहे होंगे। But this is the provider will only show you the bill based on the platform utilities, the based on the usage of the platform utilities only। जैसे इलास्टिक बीन स्टॉक है तो उसको यूज़ करने के लिए कितना बिल आता है, कितने देर तक आप उसकी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हो, या फिर गूगल एप्लीकेशन इंजन है उसको आप कितने देर तक यूज़ कर रहे हो, क्या क्या सर्विसेज उसकी यूज़ करो गूगल एप्लीकेशन इंजन की, कितने ड्यूरेशन तक के टाइम के लिए यूज़ कर रहे हो, तो ये सब कुछ है इसमें, फाइन। अब यहाँ पे ये देखिए जो यूज़र्स हैं वो कौन से होने चाहिए, तो यूज़र्स बेसिकली यहाँ पे कौन होंगे, बेसिकली दोज पीपल हु डोंट वांट टू don't want to take that headache of downloading the softwares and installing the softwares in a machine
and it may be possible that sometimes people's laptop or desktop is not supporting the applications because of low configurations. तो कभी कई सारी चीज़ें, जैसे अगर आप बिग डेटा की ले लो, हडूप वगैरह, या आप मशीन लर्निंग के रिलेटेड एप्लीकेशंस ले लो, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारा सिस्टम हैंग हो जाएगा, हम सब सिस्टम सपोर्ट नहीं कर सकता. तो ऐसे केसेस में क्या, यूजर आर यूजुअली गोइंग टूवर्ड्स द मिडल वेयर्स और टूल्स विच द क्लाउड सर्विस आर प्रोविजनिंग. जैसे फॉर एग्जांपल IBM वाटसन है, वो आपका मशीन लर्निंग बेस्ड प्लेटफॉर्म दे रहा है, उस पर आप मशीन लर्निंग एप्लीकेशन जनरेट कर सकते हो. ऐसे ही और भी काफ़ी सारे मैप रेड्यूस और ये जितने भी आपके हडूप फ्रेमवर्क्स हैं, यू माइट नॉट हैव हर्ड दिस टर्म हडूप और ये सब कुछ. बेसिकली ये सब क्या है, डेवलपमेंट टूल्स ही होते हैं हडूप और ये सब कुछ. ये अगर आपको कोई एप्लीकेशन या डेवलप करनी है, तो जिस तरह से कंपाइलर है आपका या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तो वैसे एक मिडलवेयर, एक हडूप भी एक मिडलवेयर ही है. हडूप का यूज़ कहाँ होता है, जहाँ पे भी आपको डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बनानी है, मतलब ऐसी एप्लीकेशन जो कि सिर्फ जिसके लिए काफ़ी हाई एंड सॉफ्टवेयर, हाई एंड सिस्टम चाहिए. तो पूरा का पूरा जो हडूप फ्रेमवर्क है, जो सॉफ्टवेयर है हडूप, वो क्या करता है, ये पूरा एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा इन्वायरमेंट है विच मेक्स इट पॉसिबल टू यूटिलाइज द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ मल्टीपल मशीन्स. तो यहाँ पे जो ये सॉफ्टवेयर हडूप का, वो उसको वो ऑटोमेटिकली कई सारे प्रोवाइडर्स आजकल मशीन लर्निंग के फ्रेमवर्क्स भी बाय डिफ़ॉल्ट जो फ्रेमवर्क्स है इंस्टॉल करके दे रहे हैं. आपको सिर्फ उन फ्रेमवर्क्स की कोडिंग आनी चाहिए, और आपको कोडिंग कर आप क्या कर सकते हो, उसमें कोडिंग करके अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो. उनके कोडिंग सिंटेक्स आपको सीखने पड़ेंगे, लेकिन जो भी ये टूल्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि पाइथन से रिलेटेड टूल्स हैं, या फिर एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग के फ्रेमवर्क्स दे रहा है, .NET प्रोग्रामिंग के फ्रेमवर्क्स क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर दे रहा है, हडूप के दे रहा है. तो ये सारे मिडलवेयर टूल्स हैं, इनको यूज़ करने के लिए, इनके थ्रू सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए आपको इनके क्या कर सीखना पड़ेगा, कोडिंग सीखनी पड़ेगी. ठीक है. तो बट ये दिस इज पार्ट, एंड आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू नाउ. तो इसमें यूजर्स कौन हो गए, बेसिकली डेवलपर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, क्योंकि उनको भी कॉन्फ़िगरेशन करना ही रहेगा एट द एंड जब डिप्लॉयमेंट होगा एप्लीकेशन का. टेस्टर्स हो गए, क्योंकि सिर्फ कोडर तो कोड करेगा, उसके बाद टेस्टर के काम क्या होगा, टेस्टिंग टीम विल फाइंड आउट द बग्स एंड विल ट्रबल शूट देम. And then at the end, when everything is completed, customer satisfactions are met and everything is working fine now, then the administrator will do the configurations and will deploy the application in the cloud, and then it will now the application is ready to use, ready to be used by the consumers. तो ये फाइनली जो है एडमिनिस्ट्रेटर उसको डिप्लॉय करके अवेल करवा देगा कंज्यूमर्स के लिए. तो यहाँ पे ये लोग दे कैन बी पार्ट ऑफ दी दिस the PaaS these are type of users of the PaaS services. तो कौन कौन से users हो गए, डेवलपर, टेस्टर, कोड एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑल. ठीक है. लेकिन आज के केस में क्या होता है आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस के केस में ये लोग हो सकते हैं, बट इस मेनली जो टारगेट कंज्यूमर्स होते हैं उसके, वो लोग होते हैं जो स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं या बिजनेस हैं. अब उनके अंडर चाहे डेवलपर है, चाहे कोडर, कोई भी है, एनी बडी कैन फिट इनटू दैट. इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेसिकली एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी कंपनी मानो, अब वो किस को हायर करी, क्या कर रही है, वो उसका हेडेक है. लेकिन जैसे मैं एक कंपनी नहीं चला रही हूँ, बट मेरे को एक कॉलेज के लिए प्रोजेक्ट तैयार करके देना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं नहीं चाह रही मैं लैपटॉप का कुछ भी यूज़ करूँ, आई कैन गो फॉर दी PaaS सर्विसेज एज एंड यूज़र. आई कैन गो फॉर PaaS सर्विसेज. तो एज एंड यूज़र जब मैं वहाँ पे कोडिंग कर रही हूँ, तो आई एम ऑल्सो अ डेवलपर. अगर मैं अपने प्रोजेक्ट का खुद ही टेस्टिंग कर रही हूँ, तो आई एम अ टेस्टर ऑल्सो. मैं खुद ही अगर कॉन्फ़िगरेशन कर रही हूँ, उसको डिप्लॉय भी खुद ही कर रही हूँ उस क्लाउड में, और फिर उसके बाद उसको आई मेकिंग इट अवेलेबल टू बी एक्सेस बाय द यूजर्स. तो मैं फाइनल एडमिनिस्ट्रेटर का काम, मतलब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ऑल सब मैं ही देख रही हूँ. ठीक है. तो वो एज अ होल एक डेवलपर ही बोलते हैं इसको. ठीक है. अब आई थिंक these two service models are clear to you now, IaaS and PaaS. So in the next tutorial, I'll be talking about software service and XaaS also. Fine. So now, but before ending up this, before closing this session, these are let us have a look in the examples of PaaS service providers. तो देखो मैंने जो नाम लिए थे आपके यहाँ पे लिखे हुए, इलास्टिक बीनस्टॉक, गूगल एप्लीकेशन इंजन है, Force.com हो गया, विंडोज़ अज़्योर है, हेरोको इज़ बेसिकली जो आपका ये होता है बिग डेटा एप्लीकेशंस और ये सब कुछ है ना, जो हाई एंड डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए. तो उसके लिए ये फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं. हेरोको फ्रेमवर्क की भी कोडिंग अपनी खुद में अलग से होती है. अपाचे, स्ट्रैटो, तो ये जो भी आपके मतलब ये सब मिडलवेयर हैं, टूल्स हैं बेसिकली. ये सारे टूल्स कहाँ पे होंगे, कुछ टूल्स हैं, कुछ तो एज ए कंप्लीट सर्विसेज ही हैं. ठीक है. तो PaaS हो सकता है कि सिर्फ मिडलवेयर टूल को बिलोंग करे, या PaaS हो सकता है कि कंप्लीट सर्विस को बताएं.
तो काफ़ी सारी कंपनीज पास में ऐसे आती हैं जो कि क्या करती हैं, कंप्लीट सर्विस का पूरा पैकेज दे रही है। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल एप्लीकेशन इंजन इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ पास सर्विस। तो गूगल एप्लीकेशन इंजन जो पास सर्विस है वो किसकी है, गूगल की है। गूगल एक सर्विस प्रोवाइडर है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो ये एक अपने आप में कंप्लीट सर्विस पैकेज है, और इस ये जो है डिफ़ॉल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर किसका यूज़ करेगा, गूगल का यूज़ करेगा। लेकिन ऐसे भी कई सारे पास सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जिनका क्या होता है, जो सिर्फ मिडलवेयर देते हैं। जैसे कि गूगल एप्लीकेशन में बहुत सारे मिडलवेयर्स होंगे, कंपाइलर बहुत सारे काफ़ी टाइप के कंपाइलर्स होंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फ्रेमवर्क्स होंगे, आईडीज़ होंगे, डेटाबेसेस होंगे। तो ये मतलब एक पूरा पैकेज बंडल है। ठीक है, लेकिन जैसे कुछ कुछ और इसके अलावा वो डिफ़ॉल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे रहा है आपको, तो ऐसे लेकिन कुछ ऐसे भी पास सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि अनेका टूल इज़ वन ऑफ द पास सर्विस। तो अनेका टूल जो है वो उसका सर्विस प्रोवाइडर manjarasoft.com है वैसे बेसिकली। Manjarasoft जो एक सर्विस प्रोवाइडर है, इट हैज़ डेवलप्ड दिस अनेका टूल विच इज़ अ मिडलवेयर, और आई गेस इट इज़ यूज्ड फॉर डूइंग कोडिंग एंड ऑल, डेवलपमेंट के लिए लोग यूज़ करते हैं इसको। तो अनेका टूल को लेकिन रन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। ठीक है, मतलब फिजिकल वो इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस वगैरह, ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देता माइक्रोसॉफ्ट। वो क्या देता है, सिर्फ एक मिडलवेयर टूल देता है। तो अगर अनेका टूल को किसी को यूज़ करना है तो पहले वो क्या करेगा, जैसे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर लेटर से गूगल ने अनेका माइक्रोसॉफ्ट से ले लिया, और उसके बाद वो उसको अपने थ्रू प्रोविजन करवा रहा है, सेटअप करके क्लाउड में अपने ही सर्वर्स पोस्ट करके। तो अब ये जो टूल है, इसके लिए जो थर्ड पार्टी जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है, किसका यूज़ हो रहा है, गूगल का। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो पास सर्विसेज हैं वो डिफ़ॉल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे ही देंगे, ये डिपेंड करता है। अगर बहुत बड़ी आईटी जाइंट कंपनीज हैं जैसे कि अमेजोन है या गूगल है, तो दे आर हैविंग देयर ओन, दे आर डेवलपिंग मिडलवेयर टूल्स एंड दे आर यूजिंग देयर ओन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर टू रन दोज टूल्स। ठीक है, वो डिफॉल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अपने खुद में ही वो रन कर रही हैं, होस्ट कर रही हैं एप्लीकेशंस को। लेकिन ऐसे कुछ छोटी छोटी कंपनीज हैं जो जिनके पास इतना इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा अपना मेंटेन करके रखें, तो क्या करते हैं, मिडलवेयर टूल्स बना बना के क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो आईटी जाइंट्स होते हैं, बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स, उनको देते जाते हैं। या फिर कुछ छोटे छोटे कॉलेजेस में भी, यानी ये Microsoft.com वाले तो कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर भी यूज़ कर रहे हैं, या यूनिवर्सिटीज़ के, जैसे कि बहुत सारे NITs में अनेका टूल उन्होंने सेटअप करा हुआ है अपनी खुद के लैब में। तो यहाँ पे जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन अपना खुद का दे रहा है, खुद के सिस्टम दे रहा है, और वो टूल उसके सिस्टम के ऊपर सेटअप हो रहा है। तो काफ़ी सारे छोटे छोटे ऐसे भी हैं, मतलब सब क्लाउड सर्विसेज जो बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, दोज हु आर नॉट प्रोवाइडिंग द डिफॉल्ट गिविंग द डिफॉल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बट क्रिएटिंग द मिडलवेयर मतलब टूल्स, जो डेवलपमेंट टूल्स है वो बना रहे हैं वो। ठीक है, बट उनको यूज़ करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ना कैसे करके मैनेज करना पड़ेगा, या तो खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करो या फिर किसी दूसरा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू उस टूल को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स का आप इन लोगों का आपस में टाइप तो होता ही है। तो ये ऐसा नहीं कि जितने सारे टूल्स कोई सर्विस प्रोवाइडर दे रहा है वो सारे टूल्स उसी को ही बिलोंग करते हैं। कुछ टूल्स तो खुद के होंगे, लेकिन काफ़ी सारे टूल्स ऐसे होते हैं जो कि लिए हुए होते हैं, ठीक है, दूसरी कंपनीज से, और मतलब परचेस करके लिए होते हैं, और कुछ इनका एग्रीमेंट आपस में रहता है, और बट उनको उसके हम सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू ही यूज़ कर रहे हैं जो उसको हमें प्रोवाइड करवा रहा है। बट इट मे हैपन कि वो मिडलवेयर एक्चुअल में उसको बिलोंग नहीं करता, वो है किसी और से हायर किया हुआ, लिया हुआ। तो आई थिंक आपको आर्स इंफ्रास्ट्रक्चर और पास का जो बेसिक डिफरेंस है, आई थिंक दैट इज़ क्लियर टू यू नाउ। फाइन, ओके, थैंक यू सो मच।